جو طریقت کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے. ہاں ہاں یعنی حضور مجدد البستانی نقشبندی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے, ہاں کوئی بندہ دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے, جی 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 اور حضور کی گستاخی ٹھنڈے پیٹ سن لے, جی اس کے پاس میں عوام کا ایک مجموعہ ہے نا, وہ جدھر جائے عوام ادھر چلے, ایک طبقہ ادھر چلے اور وہ کچھ نہ بولے, تو میدان محشر میں اس کے منہ پر اس کے جو درود شریف کا معاملات ہیں وہ پھینک دیے جائیں گے. تو حضرت یہ پوسٹر آپ نے بھی اپنے میں شیئر کی ہے, کون ہے؟ مفتی سلمان اظہری ہے نا, اختر رضا نقشبندی ہیں آپ. تو چلو ٹھیک ہے, یہ اتحاد اتفاق ہونی چاہیے. ایسے وقت میں دیوبندی جو ہے اہل حدیث بریلوی سب جب مسلمان اور اسلام کے نام پر انہیں تکلیف پہنچائی جائے اور ٹکڑے یہ ان کو اسلام پر, اسلام کے احکام پر جو انگلی اٹھائی جائے, سب کو متفق طور پر اتفاق ہو کر اتحاد ہو کر کے آواز اٹھانی چاہیے. لیکن حضرت یہ جو آپ نے جو آپ نے لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگ گستاخی کی حد پار کر رہے تھے اور بڑی بڑی خانقاہ کے ذمہ دار گونگے بنے بیٹھے تھے, کون کوئی نامزد ہے کوئی؟ نہیں, نامزد نہیں ہے, مطلقاً نہیں ہے. اچھا, آپ خود بہتر جانتے اس بات کو. تو اس وقت حضرت میں کیا بول رہا ہوں, اس وقت ایک گستاخ رسول کے متعلق جو جملہ آپ نے لکھا ہے اسے کون مراد ہے؟ کیا جنہوں نے جیل بھیجا ہے وہی مراد ہے یا کوئی اور فرقہ مراد ہے؟ گستاخ رسول سے مراد یہ نرسنگانند راؤ. اچھا, اس سے کوئی دیوبندی وہابی اہل حدیث تو نہیں ہے نا؟ نہیں 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 نہیں, تو یہاں تو نرسنگانند راؤ مفتی سلمان اظہری صاحب کو عروج کب ملا ہے؟ اچھا, کب ملا عروج ان کو؟ جب نرسنگانند راؤ کو انہوں نے چیلنج کیا. ایسا نہیں کہنا چاہیے حضرت, ایسا نہیں کہنا چاہیے. اگر کوئی مفتی ہے تو علم دین کی وجہ سے ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ کیا وعدہ ہے کہ دین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے جماعتوں کو جو ہے عروج دیتا ہے نا. تو اللہ کسی کو یہ عروج دیتا ہے دین کی وجہ سے. آپ کہہ رہے ہیں کسی پر کسی باطل کی وجہ سے, اس پر تباہی کرنے کی وجہ سے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن ہے جسے اللہ کچھ, جس کی وجہ سے کچھ قوم کو اللہ جی رسالت پر تہمت ہے, ٹھیک ہے. نہیں بات صحیح ہے. طرف سے اچھا, مطلب اس سے پہلے ان کو عروج نہیں تھا. پھر کیا آپ اس طرح کا فیل دیکھیں گے نا, یہاں مقصد جس طریقے سے آپ لے رہے ہیں نا کہ آپ, میں نے یہاں کے شیعہ فرقے کو یا وہابی فرقے کو نوٹس کیا ہے, تو نہیں. الحمدللہ اللہ بہتر جانتا ہے, جب میں پوسٹ کو تحریر کر رہا تھا, جب باخدا میری نیت یہی تھی, پوری صورت نرسنگانند راؤ کی میرے ذہن میں تھی. اچھا, نہیں آپ کو وضاحت کر دینی چاہیے. نہیں میری بات سنیں نا اختر رضا صاحب, یہاں جب کہ حالات بگڑے ہوئے ہیں اور اس وقت موقع ہے کہ ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے ان کو ایک ہو کر کے آواز اٹھانی چاہیے. اس وقت آپ کی وضاحت کے بغیر یہ جملہ استعمال کرنا گستاخ نبی کے گستاخ پر, ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کو وضاحت کرنا چاہیے. یہاں سے دیوبندی سنیں حضرت میں کیا بول رہا ہوں, ایک وضاحتی پوسٹ آپ شیئر کریں کہ اس سے گستاخی سے مراد نہ دیوبندی نہ وہابی نہ اہل حدیث ہے, بلکہ ہماری مراد کچھ اور ہے. اب اگرچہ آپ جملہ استعمال نہ کریں, کسی پر اشارہ نہ کریں, لیکن یہ خلاصہ ہونی چاہیے تاکہ اتفاق اتحاد کے اندر کوئی روڑا نہ ہو, کوئی دیواریں نہ ہو. نہیں, میری بات سنیں. سب سے مین چیز تو یہ ہے جس طریقے سے میں نے عرض کیا نا, تو یہ کہیں نہ کہیں جو قمر جنی عثمانی صاحب, کون قمر جنی عثمانی صاحب, جی جیل میں, ہاں نہیں یہ تو نہیں ہونے چاہیے. سنا ہوگا شاید آپ نے. جی نام سنا ہوں. وہ بھی اسی کیس میں گئے تھے. جی, جب غریب نواز کی شان میں گستاخی کی تھی, انہوں نے انشن پیش کیا تھا, تو ان کے جو بھائی ہونی چاہیے. اللہ والے کی شان میں جب بھی گستاخی کرے آواز اٹھانے. جی, تو انہیں کا بھی یہی جملہ ہے جی جو میں نے ادا کیا نا, ہاں ان کا بھی یہی جملہ ہے. نہیں اصل میں کیا ہے اختر رضا صاحب, یہاں پر جس طریقے سے میں نے بولا نا کہ جی میری بات سنیں, میں نے لفظ اس میں کیا استعمال کیا, ہاں کہ جس وقت یعنی خصوصی وقت سے مراد ہو گئی یہاں پہ, ٹھیک ہے. ایک وقت قید ہو گیا ذہن میں, حضور کی شان میں گستاخی کی جا رہی تھی, ٹھیک ہے. تو اس وقت جب نرسنگانند راؤ عروج پہ تھا, جی اب کوئی وہابی, کوئی دیوبندی, کوئی شیعہ, کوئی رافضی, کوئی اتنا بڑا مطلب گستاخی کا معاملہ نہیں تھا اس سے. نہیں حضرت آپ غلط سوچ رہے ہیں. دیوبند کے بہت سارے علماء نے, اختر رضا صاحب, دیوبند کے بہت سارے علماء نے آوازیں اٹھائی تھی. باقاعدہ کتنے چینلوں کے اندر, بہت سارے چینل ہیں دیوبندی کے, اس میں آواز اٹھائی تھی. میں
कह रहा हूँ ये, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये कहा कि जिस तरीके से पोस्ट में लिखा है कि जिस वक्त हुजूर की शान में गुस्ताखी की जा रही थी ना, और बड़ी बड़ी खानकाहों के लोग गूंगे बने बैठे थे, यहाँ से मुराद आप किसको समझ रहे हैं? यहाँ तो कोई हाँ वजाहत नहीं है, इससे देवबंदी भी समझ, क्योंकि जो मसला के आला हज़रत वाले जो है नहीं तनकीद यहाँ पर ही नहीं जी, बात सुनो ना, जो आपने अक्सर देखा होगा, जो फकत तरीकत का मामला, इसे खास करके मैं डायरेक्ट तौर पर कहूँ आपको, तो ये मान के चलिए कि जो ढोल ताशा कव्वाली गाना बाजा ना, आजकल के इनके मामला ऐसे हैं कि कुछ भी हो जाए ना, इसकी शान में गुस्सा ये इनका अपना अलग ही मामला लेके चल रहे हैं। कौन लोग? जो ये जैसे ये खुसूसी है कव्वाली वगैरह गाना गाज वगैरह जो चल नहीं रहा आजकल, हाँ पालके वालके बैठे हैं, लोग सजदा कर रहे हैं, ऐसे हाथ लगा रहे हैं तो कव्वालों को लुटा रहे हैं, मतलब इधर क्या हो रहा है, रिसालत से क्या काम है, नबूवत से क्या काम? नहीं, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। कोई मतलब नहीं। हाँ, कौम को खाली कव्वाली पर लुटाने का मकसद बस चाहिए, बस उसी में मज़ा ले रहे हैं, इस्लाम कितने, इस्लाम के ऊपर, इस्लाम के अहकाम के ऊपर। यहाँ जो मेरी लफ्ज़ है, यहाँ पर जो मेरी लफ्ज़ है ना जी, बड़ी बड़ी खानकाहों के लोग गूंगे बने बैठे हैं, यही मुराद है, क्योंकि बाकी ने तो आवाज उठाई है। अगर कोई बोलेगा कि अरे ये देवबंदी की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे, तो फिर जाहिर सी बात ज़हन में आ जाएगी नहीं देवबंदियों ने तो बोला था। नहीं, असल में क्या है, सही बरेली की वालों का तो नहीं, असल में क्या है हजरत, लोग सोचेंगे कि नहीं बरेली वाले ने बोला था, अख्तर रजा साहब इनकी तरफ जाएगा ना, जी जी, असल में क्या है, लोग अपने आप के कटने लगेंगे हजरत। हाँ, असल क्या है, बहुत सारी किताबें हैं मसलक आला हज़रत वाले की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदू, और हम हिंदू तो बन सकते हैं लेकिन वहाबी नहीं बन सकते, हम हिंदू तो हैं लेकिन वहाबी नहीं। तो पता है चला हिंदू के मुकाबले में वहाबी को बदतरीन समझा जा रहा है। तो जब यहाँ गुस्ताखी का जुमला लिखा है आपने, यहाँ कोई वजाहत नहीं है, तो लोग यही समझेंगे कि भाई ये देवबंदी वहाबी और अहले कहा जा रहा है। तो अब आइंदा हज़रत अगर कोई पोस्ट लिखें आप, तो इस पर वजाहत कर दें, अगरचे आप जिस तरह इशारा आपको है उसका नाम ना लें, लेकिन ये तो वजाहत करें कि हमारी गुस्ताखी से मुराद यहाँ देवबंदी वहाबी अहले हदीस नहीं है, मेरा मकसद कोई और है, मेरी मुराद कुछ और है, हम उसकी तरफ कह रहे हैं, इतना तो कह सकते हैं ना भाई, क्योंकि लोग यही समझेंगे कि आज जबकि बहुत सारे सुने ना हज़रत, बहुत सारे चैनलों में मैंने अभी बहुत सारे वीडियो में देखा, देवबंदी चैनलों के अंदर जो खुद मुफ्ती सलमान अजहरी के तायद में आए हुए मौलाना सज्जाद नौमानी साहब भी आए हुए हैं, पता है आपको हज़रत? मौलाना सज्जाद सुनना, मौलाना सज्जाद नौमानी साहब हैं, और मौलाना दूसरा एक चैनल क्या है, मिल्लत टाइम्स है, वो भी कासिमी है, और अब्दुल्ला चतुर्वेदी आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े आलिम हैं ये, और गुफरान बिन याकूब कासिमी चैनल है, उन्होंने भी। तो बहुत सारे उलमा और बहुत सारे चैनल वाले जो है आज चूँकि मुसलमान के नाम पर उन पर मुसीबतें आई हैं, हालात आए हैं, तो उसकी तायद में आए हुए हैं। तो इस ऐसे वक्त में इस तरह पोस्ट का शाये करना, इत्तेफाक के अंदर दरारें पैदा होंगी, रुकावट होंगी, तो आपको खुलासा कर देना चाहिए। लोग सुने, लोग अवाम गुमराह होगी, इससे अवाम, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, अवाम गुमराह होगी, इसलिए इसे पोस्ट शाये न करें। हाँ, सही कहा आपने। सबसे मेन चीज़ तो ये है जी, जिस तरीके से आप इसको सोच रहे हैं ना जी, इतने इल्म मामला हर इंसान नहीं रखता है, सबसे मेन जी, बिल्कुल इसलिए तो कह रहा हूँ जी। जहाँ मुफ्ती सलमान अजहरी नाम का काम लिया जी, लोगों की ज़हनियत में बता रहा हूँ आपको जी, जिस तरीके से मैंने मुफ्ती सलमान अजहरी का नाम लिया, तो ऑटोमेटिक ज़हन में किसकी तस्वीर बन जाती है? सिंघानंद की। नहीं, ऐसा नहीं, जब हज़रत खाली उनका नाम लेते ठीक चला, लेकिन गुस्ताख रसूल का जुमला जो है ना, ये आप हुस्सामुल हरमैन में लें, जहाँ गुस्ताख पर फतवा लगा है, वहाँ किसी, हालांकि देवबंदी, शिया और वहाबी और अहले से पहले बहुत सारे गुस्ताख गुजर चुके हैं, तो वहाँ जो हुस्सामुल हरमैन में वहाँ तो गुस्ताख फतवा लगा गया है, वहाँ किसी और पर नहीं है, देवबंद के मुखातब करेंगे। जहाँ गुस्ताखी का लफ्ज़ आएगा, आपके इस जुमले से बहुत सारे लोग, चाहे बरेलवी हो देवबंदी, समझेंगे भैया, बरेलवी समझेंगे सही कहा, देवबंदी को कहा जा रहा है, देवबंदी समझेंगे हमको कहा जा रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिस तरह आपने तस्लीम किया है, इसका उबाल आप पर आएगा, तो इसकी वजाहत करें, आइंदा कोई पोस्टर हो तो ठीक है। अल्लाह बेहतर जानता है। जी जी जी, हज़रत अल्लाह तो जानता है, लेकिन लोग तो नहीं समझे। अल्लाह को बताया ना, जिस तरीके से आपने इतना मामला बताया ना, पोस्ट तहरीर करते वक्त गुस्सा के रसूल के वक्त,
मेरे जहन में वहाबी थे, जी शिया थे। नहीं ठीक है हज़रत, आप जिस तरह ये हज़रत मेरी बात सुने, मैं इसलिए आपको फ़ोन किया है कि व्हाट्सएप में गर्दिश कर रहा है ये पोस्ट, और लोग कह रहे हैं कि देखो अभी भी ये लोग सुधर नहीं रहे हैं, जबकि देवबंदी के कई चैनल उलमा आकर के मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के तायद में आए हुए हैं, बोल रहे हैं, फिर भी ये लोग इस तरह पोस्टबाजी कर रहे हैं, गुस्ताख रसूल। तो इससे मुराद वो अपने ऊपर ले रहे हैं, और बरेलवी हज़रात भी देवबंदी की तरफ मुखातब कर रहे हैं। देखो और यहाँ तक कि हज़रत आपको पता है, आप सुने, आप वो मिल्लत टाइम्स में सुने, आप वहाँ उन्होंने कहा है कि बहुत सारे, और गुफरान बिन याकूब चैनल में सुने, बहुत सारे कमेंट में बरेलवी हज़रात कह रहे हैं कि सर मुफ्ती सलमान अज़हरी के तायद में किसी देवबंदी वहाबी अहले को नहीं आना चाहिए, हम अकेले ही काफ़ी हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, इसलिए आप ऐसे पोस्ट करें कि जो भी मुसलमान कलमा गो। जी जब पोस्ट बनाई जाती है, जी जी, तो हर वक्त जहन वो नहीं सोच पाता इस वक्त अभी आपने सोचा। जी जी जी, कहने से मुराद यही है, इस वक्त मैंने लिखा था तो पूरी खुलूसियत के साथ जो मेरी नियत थी, अच्छी बात है, तो नसीगा न डाल की थी, माशाल्लाह, अच्छी बात है। अवाम उसको इस तरीके के मामलात में लेगी, हाँ, जहन में नहीं आया था मेरे, माशाल्लाह। हाँ, तब तो ये ले रही है तो वाकईतन वो गलत है। जी जी, और पोस्टर अब शाया हो गई है, बाकी जो दूसरे प्लेटफॉर्म बचे हैं, जी व्हाट्सएप पे हुई है, अब जो दूसरे प्लेटफॉर्म बचे हैं जी, इस पे इंशाल्लाह ताला में इस चीज को ऐड करके माशाल्लाह जी करें, बिल्कुल करें, बहुत ज़रूरी है इस वक्त, चाहे अहले हदीस के उलमा हो, चाहे देवबंदी वहाबी के उलमा हो, चाहे मसलक के आलत बरेलवी के उलमा हो, किसी पर भी मुसलमान और कलमा के नाम पर अगर उन पर उंगली उठाई जाए, उन पर हालात आए, सब एक होना चाहिए। ठीक है हज़रत, इस वक्त जमहूरियत की जरूरत है, और हम तो खुद अभी ये चाह रहे हैं जी कि पोस्ट के जरिए जैसा मामला तैयार करें, हाँ कि फिरका परस्त अपने आप रखें, बिल्कुल रखें, जी बिल्कुल, तो जिससे साबित भी है, ठीक है। पर जब ऐसा मामला करे कि फकत एक नजरिया इंसान अजमाए कि ये मुसलमान है, इसको बस जुल्म किया जाए, उस दौर में फिर जमहूरियत जरूरी है। बिल्कुल, अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे बाजू में चल रहे हैं, तो आप अपना अकीदा रखें, अपना अकीदा रखता हूँ, बाकी गैर कौम को ये नहीं पता चलना चाहिए ये फला है, ये फला है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ये नज़रिया सबका होना चाहिए, ये आवाम तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए। इस पर हम काम करने भी वाले हैं। अगर मैं इसका पहले से इतनी चीजें सोचता तो ये पोस्ट से मुराद मेरी ये नहीं रहती, पर जिस तरीके से आपने बताया है, जी जी, तो हर इंसान का मामला अलग अलग, जैसे हर शहर में एक रस्म रिवाज होती है, हाँ हाँ हाँ, उसी तरीके से एक खुसूसी शहर में जहाँ ज्यादा वहाबियत फैली हो या रद्द वहाबियत होता हो, तो वहाँ अगर मेरी ऐसी पोस्ट आएगी तो लोग उस तरफ लेंगे, हाँ, या ज्यादा जिस शहर में उस तरफ लेंगे, हाँ, अपने ऊपर लेंगे। बात सही है, और मैं तस्लीम भी कर रहा हूँ। जी जी, ठीक है, तो आप आज ऐलान भी कर दें आप कि भाई, हाँ, कि इस वक्त जो है ज़रूरत इस बात की है, मस्जिद अगर है तो मस्जिद सिर्फ एक पोस्ट रहेगी, हाँ जी, मस्जिद पर कोई अगर आँच आए तो मस्जिद सिर्फ इसलिए नहीं आँच लोग आगे करेंगे, हमला करेंगे कि भाई मस्जिद देवबंदी का है, कि वहाबी की है, कि बरेलवी की है, बस मुसलमानों की मस्जिद है, इबादत गाना है, हैं? अगर किसी मदरसा पर हमला हो रहा है तो ये नहीं कर रहे हो कि भाई देवबंदी के मदरसे हैं, वहाबी के मदरसे हैं, कि बरेलवी के मदरसे हैं, अहले मुसलमान का मदरसा है, तो इसी सोच लेकर लोग आते हैं, यही सोच रहा है ना। हाँ, तो हम अगर इसके बावजूद भी अगर हम ये सोचें कि भाई तो फ़लाँ की मस्जिदें हैं, फ़लाँ के मदरसे हैं, फ़लाँ के उलमा हैं, हमारी क्या ज़रूरत, इसी वजह से तो इराक़ बर्बाद हुआ, इसी वजह से शाम बर्बाद हुआ, इसी वजह से कई मुल्क बर्बाद हुए कि सिया सुन्नी लड़ा करके। हम वो थोड़ा ये सोच रहे हैं कि ये सुन्नी की है तो ये हक है तो इनकी मस्जिद रहने दो, या ये ऐसे है तो इनकी रहने दो। जी, वो तो यही सोच रहा है कि मुसलमानों का मामला है, बिल्कुल दरगाह है जी, उसको खत्म किया जाए। जी जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह काम करने वाले हैं, और जिस तरीके से आपने मामला बताया अल्हम्दुलिल्लाह वो नियत मेरी नहीं थी, काम करें आप, ना रहेगी, हम तायद करेंगे इंशाल्लाह आपकी, आप काम करें इस पर इंशाल्लाह। कहाँ से आप? मैं गुजरात से हूँ, मेरा नाम अली असगर। आप कहाँ से हज़रत? मध्य प्रदेश। ठीक है, जज़ाकल्लाह हज़रत हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।